Hello everyone. Today we are going to discuss about data integrity, consequence of DI, what are the Alcoa Plus. All this thing is covered in this lecture. So please keep watch till the end. You will get better information from this video. Okay. So let's start with the overview of our presentation. So today we're looking before the data integrity, some definitions, why data integrity necessary, consequences of DI, data integrity principles, Alcoa principles, Alcoa Plus principles, data integrity issues, data integrity implementation, and the summary of overall presentation. Okay, so let's start with the definitions. Before starting the data integrity issues or data integrity Alcoa principle, we must know what is actual data. Okay, so what does the data mean? So it is the information derived or obtained from the raw data. So now what are the different types of data? So here one is the static data. Okay, static data, for example paper records or chromatogram. Static data indicate once you record anything on a paper, it becomes permanent. You cannot modify it. Okay, that's why it's called as static data. Second one is the dynamic data. For example, integration parameter or electronic data. In dynamic data, you can change or you can make any changes in data. It will be modified. So here is the example is integration parameter. Like suppose you are modifying some integration parameters, your result will be changed as per modification. That's why it's called the dynamic data, because of its modification property. Third one is hybrid data. Now what is hybrid data? It's the both. Means it's the combination of static plus dynamic data. It's the combination of paper record and electronic data. So these are the basic different types of data. Now the one more thing is important is the metadata. Now most of people are confusing regarding this concept, so I here give us some example to understand the metadata. Okay, so see, metadata is the data about data. The data is incomplete without the metadata. कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो मेटाडेटा के बिना कंप्लीट हो. मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अदर जो डेटा होता है उसको बोलते हैं मेटाडेटा. फॉर एग्जांपल here 50 is only number. If we write the 50, it's only number, but we put any unit like ml, gram, it become a value. It gets some value from the 50. Okay, so this unit like ml, gram, minute, meter, or whatever, it shows the metadata. These are called as a metadata. For another example, so see here, so here 50 is only the number until and unless unit is attached. Okay, depending upon what is the unit attached to 50, it becomes that their metadata. So see here in the figure, this is only the picture. It's a one type of data. Okay, but see here the properties, all the properties regarding data is called as a metadata. मेटाडेटा हम इसको बोलते हैं. हम जब इस पिक्चर को देखेंगे तो उस टाइम पे हमें ये जो उसका फाइल नेम, लोकेशन, उसका साइज नहीं दिखेगा. इस मेटाडेटा किसको बोलते हैं? वो दिखता नहीं है लेकिन वो सपोर्टिंग डेटा होता है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मेटाडेटा. सो नाउ another definition, data integrity. So data integrity is overall the completeness, accuracy and consistency of data throughout the life cycle. This can be indicated by the absence of alteration between two instances or between two updates of the data record. It's meaning the data is intact and unchanged. So यहाँ पे देखो जिसकी यहाँ पे लिखा है डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? ओवरऑल कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. और दो डेटा के बीच में कोई अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मॉडिफिकेशंस नहीं होना चाहिए. So your data should be original. So remember, there is always data integrity, but there should not be data integrity issues. Most of people confusing if they are going to ask any question, is data integrity is necessary or not. तो data integrity होनी चाहिए, but डेटा इंटीग्रिटी इशू नहीं होने चाहिए.
ओके उस डेटा के इंटीग्रिटी में कोई इशू नहीं होने चाहिए, जो हमारे प्रिंसिपल है वो फॉलो होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज द वाई डेटा इंटीग्रिटी. One of the most area of concern for regulators is the quality control laboratories. In recent regulatory audits, inspectors have found many of data integrity issue in the quality control laboratory. Okay, so फार्मा में जो भी कोई काम करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट. वहाँ पे रेगुलेटरी का ज़्यादा फोकस होता है टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी. अगर वहाँ पे कोई डेटा इंटीग्रिटी इशू मिलता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत होते हैं, तो हम आगे देखने वाले हैं. सो क्वालिटी मीन्स डूइंग राइट थिंग व्हेन नोबडी इज़ लुकिंग. ओके, सो डेटा इंटीग्रिटी नेसेसरी क्यों है? ये जो हमने वो अश्योर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, रफ प्रोडक्ट. ओके, और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सी हियर ओनली द डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, हमारा जो भी बैच बनता है प्रोडक्ट का, तो जब ऑडिट होता है, ऑडिट के टाइम पे हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट डॉक्यूमेंट, ऑडिटर शुड बी गेट आइडिया अबाउट आवर वर्क और आवर इंटीग्रिटी. दैट्स व्हाई डेटा इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी हियर अश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट. डेटा इंटीग्रिटी अश्योर करता है. देन ओनली द डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स. Reliability of data presented and data integrity issue is equal to loss of trust. So that's why these all the factor matters. इसलिए data integrity बहुत necessary है. Okay, so these are the basic ideas. Suppose we are not maintaining data integrity or there is some data integrity issues, so that firm will we get warning letter, report alert, or no further approvals for our product. So this is the very important concept. Better understanding, now we are going to discuss some ALCOA principles. This is the principle given for maintaining the data integrity in the pharmaceutical industry. So ALCOA, the full form is here given. A for attributable, L legible, C contemporaneous, O original, and A is the accurate. So yes, simply description given. What is attributable? What does mean by the attributable? So attributable is simply who perform the activity and when. Our data should be represent that particular person who doing this activity, its reason and explanation. In short, data should be traceable to the source of data. मतलब simply attributable means who perform activity and when. Then traceability to the source of data. Okay, the next one is the legible. Now legible means the data should be recorded permanently and it should be durable and readable. लेजिबल इन सिंपली वे द कुछ भी आप डेटा पे लिखते हो, जो हैंड रिटन डेटा होता है वो लेजिबल होना चाहिए. मतलब जो थर्ड पर्सन है उसको पढ़ते आना चाहिए, कोई भी पर्सन हो अदर देन, तो वो क्लियरली होना चाहिए. उसमें कोई जैसे कि हम बोलते हैं ओवर राइट वगैरह नहीं होना चाहिए. इट शुड बी क्लियरली लीजिबल, ओके, एंड रीडेबल. सो दिस इज सिंपली द लीजिबल. एंड थर्ड वन इज द कंटेम्पोरेनियस. नाउ कंटेम्पोरेनियस इज द डेटा शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ वर्क इज परफॉर्म. मतलब जब भी हम काम करते हैं उसी टाइम पे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है, उससे बोलते हैं कंटेम्पोरेनियस. नाउ नेक्स्ट इज द ओरिजिनल. द डेटा शुड बी ओरिजिनल, रिकॉर्ड ऑफ ट्रू कॉपी. जो भी हम इनिशियली डेटा को रिकॉर्ड करते हैं वही हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है. सो ओरिजिनल कॉपी शुड बी मेंटेन और ट्रू कॉपी शुड बी मेंटेन. द नेक्स्ट वन इज द एक्यूरेट डेटा. द डेटा शैल बी फ्री फ्रॉम एरर. कोई भी डेटा हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए. सो दिस इज सिंपली द ALCOA प्रिंसिपल. अगर ये फॉलो होता है तो आपका डेटा इंटीग्रिटी है. अगर ये नहीं फॉलो होता है कोई भी एक प्रिंसिपल तो उसमें डेटा इंटीग्रिटी इशू बोला जाता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द ALCOA प्लस प्रिंसिपल. अभी ALCOA तो देख लिया. ALCOA प्लस उसमें क्या है, और 4 फैक्टर ऐड होते हैं. वो है कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग एंड अवेलेबल. सो कंप्लीट मीन्स when the data is complete in nature, it means there is a no deletion that takes place from the date of documenting. तो जो भी हमारा डाटा जनरेट हुआ है वो कंप्लीट डेटा हमको रखना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं होना चाहिए या फिर मिसप्लेस नहीं होना चाहिए. वो एक सही प्लेस पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए. ओके, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट. दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंस. द
डेटा शुड बी क्रोनोलॉजिकली अरेंज, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और क्रोनोलॉजी। द कंसिस्टेंसी शुड बी इंश्योर बाय अप्लाइंग वेरियस ऑडिट ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ डेटा। तो इसका मतलब ऐसा है कि हमारे फर्म में जो इंटरनल ऑडिट्स वगैरह होते हैं वो देख के हम अगर ऑडिट करते हैं तो उसमें से हमको पता चलता है कि हमारे रिकॉर्ड में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ओके, सो वो मेंटेन करने के लिए इंटरनल ऑडिट जैसे वेरियस टूल्स से जो अप्लाई करके हम उसकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है। नाउ थर्ड वन इज द एंड्यूरिंग। द रिकॉर्डेड डेटा शुड बी अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ टाइम विदाउट लूजिंग इट्स रिलेटिविटी। जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि कोई भी डेटा जो जनरेट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होना चाहिए, टाइम टू टाइम। उसके बाद उसकी जो रीडेबिलिटी हो होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पेपर और जो इंक यूज़ करना रहता है वो ऐसा सिलेक्ट करना रहता है जो लॉन्ग ड्यूरेबल हो। लाइक ऐसा नहीं जो हम बस में टिकट वगैरह लेते हो फेड हो जाता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, 10 दिन में चला जाए। तो डेटा शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, एंड्यूरिंग मीन डेटा शुड बी लॉन्ग ड्यूरेबल। नाउ अवेलेबल, द लास्ट इज द इम्पोर्टेंट, डेटा शुड बी एक्सेसिबल व्हेनेवर नीडेड ओवर द लाइफ डेटा। मतलब हमें जो डेटा की लाइफ साइकिल है उस टाइम पे जब भी हमको डेटा चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। ओके, सो लाइक ऑडिट के टाइम पे अगर हमको कोई डेटा चाहिए, ऑडिटर मांगता है, तो वो तुरंत हमें उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। तो उसका जो डेटा अरेंज करने का सीक्वेंस होता है वो उसी तरह से मेंटेन होना चाहिए कि कोई भी डेटा हमको एट ए टाइम जब चाहे वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं है, कुछ इशू है, तो वो डेटा इंटीग्रिटी इशू बन जाता है। ओके, सो हियर इज द सम एग्जांपल ऑफ डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज। अभी हमने डेटा इंटीग्रिटी देख लिया, उसके प्रिंसिपल देख लिया कि डेटा इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन रखना है। तो डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज कब होते हैं, कैसे होते हैं, उसके एग्जांपल्स है। द फॉलोइंग डेटा इंटीग्रिटी challenges are typically found in the quality control laboratories. Okay, so first is the not recording test result contemporaneously recording नहीं होता है, backdating test results and entries, falsifying test data, copying and processing existing test data as a new data, resampling. Okay, so these are the various example इनको जो डेटा इंटीग्रिटी इशू बोला जाता है। तो बैकडेटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कंटेम्पोरेसली रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर नहीं होता है दूसरे दिन आकर रिकॉर्ड करता है तो उसको कंटेम्पोरेसली रिकॉर्डिंग नहीं बोलते, वो डेटा इंटीग्रिटी इशू हो जाता है। फॉल्सिफाइंग टेस्ट डाटा, ओके, कोई मैनिपुलेशन वगैरह करता है वो भी डेटा इंटीग्रिटी इशू है। देन री रनिंग द सैम्पल, कोई सैम्पल के हमने रिजल्ट जनरेट किए, हमको लगता है कि ये गलत है तो वापस से दूसरा रन कर दिया, ओके, पास करने के लिए, तो ये भी डेटा इंटीग्रेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ कंट्रोल व्हेन इंटीग्रेटिंग क्रोमेटोग्राफिक पीक्स एंड डेटा। अगर अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एरिया आता है वो क्रोमेटोग्राफी आता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ मेथड जो होते हैं, एनालिसिस जो होता है वो क्रोमेटोग्राफी पे होता है। तो जो भी हमारे इंटीग्रेशन होते हैं क्रोमेटोग्राफी में वो प्रॉपर होने चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि कोई भी अननोन पीक वगैरह हम इनहिबिट नहीं करना है फॉर एग्जांपल। सो ऐसे वहाँ पे कंट्रोल होने चाहिए, इंटीग्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, बेस टू बेस जो बोलते हैं। तो वो सब कंट्रोल अगर होते हैं तो हम क्रोमेटोग्राफी अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हम ऑल आर डिपेंड ऑन द इंटीग्रेशन पैरामीटर्स। सो नॉट कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग द रॉ डाटा कैप्चर होना चाहिए कोई भी, ठीक है। अगर वो कैप्चर नहीं होता है तो वो सीरियस इशू होता है। ऑल द रॉ डेटा शुड बी अवेलेबल। देन ऑडिट ट्रेल डिसेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्यूसी इंस्ट्रूमेंट। जो ऑडिट ट्रेल, अभी ऑडिट ट्रेल क्या होता है, जो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसका ऑडिट लॉग होता है, मतलब कब हुई, किसने की, क्या मॉडिफिकेशन की है, ये सब ऑडिट ट्रेल में शो होता है। तो वो डिसेबल नहीं होना चाहिए, वो एनेबल होना चाहिए। दैट इज द 21 CFR कॉम्प्लाइज होना चाहिए कोई भी हमारा क्यूसी इंस्ट्रूमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। Now, here is a failure to implement adequate control for data acquisition computer systems, including the following challenges. अभी वो हो गया थोड़ा ह्यूमन रिलेटेड, जो मतलब हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। So here are some different data integrity which is related to the failure to implement the adequate control. Okay,
तो ये सिस्टम रिलेटेड सम डेटा इंटीग्रिटी से लाइक नो ऑडिट ट्रायल फंक्शन इन सिस्टम, डिसेबल ऑडिट ट्रायल फंक्शंस, इनकम्प्लीट ऑडिट ट्रायल फंक्शन, नो कंट्रोल ओवर द एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट डेटा, QC एनालिस्ट हैव एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड सिस्टम फंक्शन। हो सकता है QC एनालिस्ट के पास अगर गलती से एक्सेस चला गया होगा, उस पर कंट्रोल नहीं होगा, तो वो कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है डेटा को एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन लेके। अनऑथोराइज एंड अनकंट्रोल फाइल फोल्डर, शेयर और ग्रुप पासवर्ड, तो ये सब आते हैं डेटा इंटीग्रिटी इशू में, लेकिन ये सिस्टम रिलेटेड। और वो जो हमने लास्ट में देखे थे वो थे हमारे प्रोसेस रिलेटेड हो, और ये जो है ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी होती है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज़। तो ये सब लैब पे कंट्रोल होने चाहिए। तो आई होप यू सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि डेटा इंटीग्रिटी इशू क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, तो इम्पोर्टेंस क्या होता है। सो ये सब चीज़ें हमको मेंटेन रखनी पड़ती है, कंट्रोल रखना पड़ता है, तब जाके हम ऑडिट में पास होते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ सीरियस इफेक्ट दे सकती है, लाइक वार्निंग लेटर्स वगैरह। सो डेटा इंटीग्रिटी इम्प्लीमेंटेशन, अगर हमको डेटा इंटीग्रिटी रखना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर जैसे बोलते हैं। सो हमको पहले ही हमारा प्रिवेंटिव एक्शन ऐसा लेना है कि हमारा डेटा इंटीग्रिटी इशू नहीं मिलना चाहिए। सो उसके लिए स्ट्रेटजी फॉर द डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड टू द सिस्टम एंड प्रोसेस इन QC लैबोरेटरी नीड टू इंक्लूड बोथ पेपर बेस्ड एंड प्रोसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। जैसे कि मैंने बोला कुछ हमारे जो इशू थे वो सिस्टम रिलेटेड थे, प्रोसेस रिलेटेड थे, जो कि इनएडिक्वेट कंट्रोल होता है, PC के ऊपर कंट्रोल होता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसकी वजह से डेटा इंटीग्रिटी इशू होते हैं। और सम ऑफ पेपर बेस्ड जो रहते हैं, जो रिकॉर्डिंग होती है डेटा की, उसके रिलेटेड इशू है, तो उसको हमको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम कोई स्ट्रेटजी है, द डेटा इंटीग्रिटी स्ट्रेटजी फॉर QC लैबोरेटरी नीड टू बी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। मतलब अगर हम ये जो एक्टिविटी है वो प्लान करते हैं, वो इंक्लूड करते हैं, तो हमारा डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगा। सो उसमें आता है गैप असेसमेंट्स, रिमेडिएशन प्लान, कापाज, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, रिमेडिएशन ऑफ समरी रिपोर्ट। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल जो जिसकी वजह से हम डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। द एक्टिविटीज अबव प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू आइडेंटिफाई, रिमेडिएट, करेक्ट एंड इम्प्लीमेंट द डेटा इंटीग्रिटी गैप्स आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस। जैसे कि गैप असेसमेंट होता है, हम गैप्स फाइंड आउट करते हैं कि ऐसे कौन से गैप के जिसकी वजह से डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करने है, कापा लेना है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान्स होने चाहिए, रिमेडिएशन। सो ये सब हम जब अप्लाई करेंगे हमारे QC लैबोरेटरी में, तो हमारा डेटा इंटीग्रिटी इशू नहीं होगा या डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल रहेगी। ओके, सो some other factors which is need to be implementation like QMS modernization, नए QMS जो गाइडलाइन आते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर। अभी कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन जब होता है, तो जो हम CSV वगैरह परफॉर्म करते हैं, उसमें हम चैलेंजेस कर सकते हैं सिस्टम को एज पर 21 CFR। सो वो सब चीज़ें इसमें आती है। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, स्ट्रेंथिंग द इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट को भी स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अवेलेबल डेटा देखा था कि एट द टाइम अवेलेबल है, रीडेबल है, वो सब के लिए इंटरनल ऑडिट को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। इफेक्टिव का पास होनी चाहिए, डेटा रिव्यू पॉलिसी होना चाहिए। सो दीज आर द अदर इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर जिससे हमारा डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगा। सो समरी ऑफ द ओवरऑल प्रेजेंटेशन इज, in order to meet the data integrity requirements, regulates company need to have a formal process to identify, remediate and correct all gaps and issues found in the QC laboratories. Data integrity is a critical requirement for QC laboratories, and most companies are not in the complete alignment with the requirements found in the Annex 11 FDA and MHRA guidance document. For system owners and the quality needs to be engaged in the data integrity gaps assessment and the remediation process. Okay, so इस प्रेजेंटेशन से हमें इतना सीखने को मिलता है कि डेटा क्या होता है, डिफरेंट डेटा कैसे जनरेट होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, अल्कोआ के प्रिंसिपल्स क्या है, अल्कोआ कैसे फॉलो किया जाता है, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज़ क्या होते हैं, ह्यूमन रिलेटेड डेटा इंटीग्रिटी इशू क्या हो सकते हैं, सिस्टम रिलेटेड डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, और
फाइनली हमको डेटा इंटीग्रिटी से बचने के लिए कौन कौन से सिस्टम, जैसे कि गैप असेसमेंट करने हैं, का पाथ लेने इफेक्टिव, हमारे हमारे जो टूल्स है मॉडर्नाइज करने हैं, जैसे क्यूएमएस सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है, कंप्यूटर सिस्टम को वैलिडेशन बराबर करना है, ये सब चीज़ें आती है। तो दीज आर द ऑल और डेटा इंटीग्रिटी, देयर इश्यूज एंड the requirement of 21 CFR. So I hope you understand everybody. Please share, comments and do subscribe. Thank you for watching. Thank you.